Hello students, in our today's lecture we are going to start our unit number 2 of the taxation. Unit name is residential status of an assessee. First we have to go to understand what is the residential status of an assessee. Any tax payable to assessee based on their residential status. What do you mean by the residential status? That is either the assessee is a Indian citizen or NRI, or he might be spent some time in India or sometimes in the other country. On the basis of the residential status, the rules are going to apply. Various rules are going to apply. If it is a fully residential assessee of an India, then he should pay the income tax on the Indian income as well as foreign income. But it is not a NRI, it's not an Indian citizen, it's a NRI, so he will pay only on the Indian income. He will pay the tax only on the Indian income. So on the basis of the residential status, the total income he earned during the year shall be classified on the basis of the Indian income or foreign income. So to find out the residential status, there are basically two bifurcation of an assessee. You can see that over here. क्लासिफिकेशन ऑफ असेसी ऑन द बेसिस ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेटस. रेसिडेंशियल स्टेटस का क्लासिफिकेशन में दो आएगा. फर्स्ट है रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट. दैट मीन्स ही इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ही इज अ नॉट रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इन द बाइफिकेशन and resident further classified into two bifurcation: resident and ordinary resident, and resident but not ordinary resident. और ये रेसिडेंशियल स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ द सम कंडीशंस वी आर गोइंग टू फाइंड इट आउट. इन द प्रीवियस ईयर he receive only one status: either he is a resident, either he is a non-resident, either he is a resident of an ordinary resident and resident but not ordinary resident. So there is a three chances will be there: either it's a resident and ordinary resident, resident but not ordinary resident, and then non-resident. There is a three option. In the previous year, assessee have a status only one, either of them, right? And every year, while we are calculating the tax, every year the residential should be classified or find it out. That is, in the previous year he was a resident or resident but ordinary resident, resident but not ordinary resident, and non-resident. So we have to first find out the residential status on the basis of some condition. This is the most important thing to find out the residential status, right? To find out the residential status of an individual, basic two conditions should be satisfied. First is 182 days or more stays in India in previous year. We have to calculate that he stay in India in previous year should be more than 182 days. इसका मतलब है कि previous year में 182 दिन से ज़्यादा वो इंडिया में होना चाहिए. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, so he will become a resident of India. Understood? अगर वो प्रीवियस ईयर में 182 दिन से ज़्यादा इंडिया में था तो वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा. अगर 182 डेज नहीं होते हैं तो बाकी के दो कंडीशन, ये यहाँ पे और लिखा है, यहाँ पे एंड लिखा है. और का मतलब है ये या ये नहीं हो रहा तो ये दोनों, ठीक है. और यहाँ पे एंड लिखा है, या इसका मतलब है ये दोनों साथ में होना चाहिए, ठीक है. तो अगर किसी रेसिडेंट का और इंडिविजुअल का 182 डेज नहीं होता है तो हम ये दो कंडीशन चेक करेंगे. तो पहली कंडीशन क्या है? 60 days or more stay in India in previous year. So rather than 182, it will equals to 60 days. तो इसका मतलब है कि अगर 182 दिन नहीं होते तो 60 दिन से ज़्यादा वो इंडिया में स्टे करना चाहिए इन प्रीवियस ईयर. साथ में 365 days or more stay in India in 4 preceding previous year. यानी कि
प्रीवियस ईयर में 60 दिन से ज़्यादा होने चाहिए और प्रीवियस ईयर के इमीडिएट प्रिसीडिंग 4 years यानी कि 4 साल पहले, कंटिन्यूअस 4 साल पहले के टोटल डेज होते हैं जो उसने इंडिया में गुजारे हैं, उसका टोटल 365 होना चाहिए, उसका टोटल 365 होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाइड होती है तो भी वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा। अगर ये तीनों में से, अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई, ये दोनों भी नहीं हुई, तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो उसे नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहा जाएगा। अगर ये सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो भी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन ये दोनों साथ में कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो भी वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा। और तीनों में से ये भी सेटिस्फाई नहीं हुई, ये भी नहीं और ये भी नहीं, तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो उसे नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहा जाएगा। सो रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए ये बेसिक कंडीशन है जो हमको समझनी चाहिए। समझ में आया? दिस इज अ बेसिक 2 कंडीशन, ये दोनों साथ में है। तो ये दोनों 2 कंडीशनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा। ठीक है? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। ये कंडीशन के 2 एक्सेप्शंस है। फर्स्ट एक्सेप्शंस ये है कि अगर कोई इंडिविजुअल इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, इंडियन शिप का क्रू मेंबर है तो यहाँ 60 डेज के अलावा 182 डेज आएगा तो ही वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा। देन इफ any individual he went for the outside India for the purpose of the employment के लिए अगर कोई इंडिविजुअल दूसरे देश में गया है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द आउटसाइड इंडिया, then and only it's the 60 days extended to 182 days. There are 2 basic clarification needed. That is the one, he is the Indian ship crew member, either it went for purpose of the employment, then it will 60 in exchange of the 182 days आ जाएगा। समझ में आया? रेसिडेंट फर्दर क्लासिफाई होता है 2 चीज़ों में, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट स्टेटस चेक करने के लिए अगेन 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी तो ही वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट और बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स कौन सी होगी वो स्टेटस हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो वो 2 कंडीशन क्या होगी? तो उसमें से पहली कंडीशन होगी ही मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट लीस्ट 2 years आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। इसका मतलब क्या है कि प्रीवियस ईयर के 10 प्रीवियस ईयर के प्रीसीडिंग 10 साल पहले, 10 सालों में से कोई भी 2 ईयर में ही मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दैट मीन्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया की 2 कंडीशंस थी वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि 10 साल में से कोई भी 2 साल में वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। एंड इंक्लूडिंग दिस 730 days or more stays in India during 7 preceding previous year, और प्रीवियस ईयर के पहले 7 सालों में उसके स्टेज इन इंडिया टोटल डेज शुड बी एक्सीड 730 days। सो जो सारी की सारी हम कैलकुलेशन करेंगे उसके हिसाब से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये कंडीशंस क्या है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, 10 सालों में से 2 साल वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा या उसका स्टेज इन इंडिया 730 days और मोर होगा, ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होती है, दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होती है तो उसे हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहेंगे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट अगर ये दोनों एक साथ सेटिस्फाई नहीं होती, सिर्फ ये होती है और ये नहीं होती तो भी नहीं, और दोनों नहीं होती है तो उसे बोलेंगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। समझ में आया?
तो हम ये 3 कंडीशन और ये 2 कंडीशन के साथ हम रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे कोई भी इंडिविजुअल असेसी का। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द इंडिविजुअल असेसी। समझ में आया? तो हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि कैसे किसी भी इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक किया जाता है। आपको ये 3 और ये 5 कंडीशंस याद रखनी है, जिसके हिसाब से हम रेसिडेंशियल स्टेटस किसी भी इंडिविजुअल का कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? इलस्ट्रेशन के हिसाब से हम समझते हैं कि कोई भी असेसी का हम रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशन नंबर 1। श्री अनुराग मेहता, एन इंडियन सिटीजन, is employed in USA for the last 15 years. He returned to India on 1st July 2019 to attend a marriage function and stayed in India up to 30th April 2020. They determined the residential status for the assessment year 2020 and 21. So let's calculate. Illustration number 1. First we have to decide which is the assessment year and which is the previous year. So it is given that assessment year is equals to 2020 and 21. So previous year would be 2019-20. So previous year would be 2019 and 20. He stayed in India from 1st July 2019 to 30th April 2020. हमारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट कब से होगा? 1/4/2019 टू 30th March 2020। ये हमारा प्रीवियस ईयर टाइम पीरियड हो गया। ठीक है? इस टाइम पीरियड में उसने कितने टाइम तक इंडिया में रहा है? तो वो रहा है 1st जुलाई टू 30th अप्रैल। बट हमारा ईयर तो मार्च में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो हम अप्रैल मंथ काउंट नहीं करेंगे। वी विल स्टार्ट विद द जुलाई। जुलाई की 1st तारीख को ही आ गया था, यानी कि पूरे का पूरा जुलाई महीने से वो इंडिया में ही था। तो जुलाई मंथ के 31 डेज, देन अगस्त के 31, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, देन February and March. Just because we not consider the April, just because our financial year ended in the 31st March. So we will calculate till the March only. So जुलाई के 31 डेज, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के। इट इज अ 2020, इट्स लीप ईयर। 2020 is a leap year, so it will come 29 days, and here the March 31 days. So now we have to calculate the stays in India during the previous year. So 31 plus 31, 30, 31, 30. 275. That means he stayed in India in a previous year. There is a 275 days. Previous year में वो 275 days इंडिया में रहा था। तो अब हम कंडीशन चेक करेंगे। पहली कंडीशन हो गई 182 days और मोर स्टेड इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर। सो 182 days से तो ज्यादा ही है, 275 है। दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दैट मीन्स ही रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया। सो इज डिक्लेयर्ड। ये दोनों चीज चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये नहीं हो तो ही ये 2 कंडीशन साथ में चेक करनी पड़ेगी। अगर ये फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई हो जाती है तो वो डायरेक्टली रेसिडेंशियल स्टेटस मिल जाता है उसे। तो ही इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ
अब वो रेसिडेंट है तो हमें फर्दर बाइफिकेशन देखनी होगी कि वो ऑर्डिनरी है कि बट नॉट ऑर्डिनरी है। ठीक है, उसकी दो कंडीशन ये है। कंडीशन ये है कि 10 सालों में से 2 साल वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए या तो 730 डेज होना चाहिए प्रीसीडिंग 7 ईयर्स। पर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हमें सब में दी गई नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ दिस असेसी मिस्टर मेहता हैज अ रेसिडेंट but not ordinary resident। समझ में आया? अगर 182 डेज से ज़्यादा है, पहले ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो रेसिडेंट तो हो ही जाएगा। रेसिडेंट डिक्लेयर हो गया तो हम ये दोनों कंडीशन चेक करेंगे। अगर इन्फॉर्मेशन दी गई होती तो ये हम दोनों कंडीशन भी चेक करते, उसके हिसाब से हम रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट स्टेटस चेक करते। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2। आपको एक बात बता देती हूँ कि जब आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पे 275 डेज आया, बाद में आपको ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि ये कंडीशन है, ये सेटिस्फाई हो रही है, इसी वजह से वो रेसिडेंट होगा। और ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी वॉट एवर विट शुड बी देयर, यू हैव टू राइट द सम कंडीशन इन योर आंसर। अंडरस्टूड? नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द इलस्ट्रेशन नंबर 2. What is the illustration number 2? The previous year, Mr. Smart is the financial year 2019. On an inquiry, it is found that he was physically present in India from 14th November 2019 to 31st December 2019. Both the days inclusive. He was also physically present in India for 365 days during the preceding previous year 2015-16 to 2018-19, यानी कि 15-16 से 18-19 ये सारे के सारे ईयर्स वो 385 डेज टोटल 385 डेज वो इंडिया में था। और प्रीवियस ईयर में नवंबर और दिसंबर में इन दिनों तक था। तो देखते हैं वो रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा या ऑर्डिनरी और बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। तो पहले तो हम रेसिडेंशियल का ही स्टेटस चेक करेंगे। तो पहले तो दिन गिन लेते हैं प्रीवियस ईयर के। तो पहले हम लिखेंगे असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर हमें दिया हुआ है 2019-20, सो असेसमेंट ईयर हुआ 2021। सबसे पहले हम असेसमेंट और प्रीवियस ईयर लिखेंगे, फिर प्रीवियस ईयर का पीरियड लिखेंगे 1/4/2019 टू 31st March 2020। ये पीरियड लिखने के बाद हम उसके डेज कैलकुलेट करेंगे 14th November टू 31st December। तो नवंबर मंथ के 14 डेट पे वो आया है, दैट मीन्स बोथ डेज आर इंक्लूसिव। सो 14 डेट भी हमें कैलकुलेट करनी है। तो नवंबर के कितने दिन होते हैं? 30 दिन। उसमें से पहले के 13 दिन, पहले के 13 डेज वो इंडिया में नहीं था। तो इंडिया में कितने दिन था? 17। और आप ऐसे ही गिन सकते हो 14 to 30 डेज, 30 डेट की तक। सो वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो भी आप 17 ही आएगा, या आपके आगे के जो दिन है जो वो इंडिया में नहीं था वो डिडक्ट कर दो, तो भी आपको ये दिन मिल जाएंगे 17 डेज इन नवंबर। नाउ दिसंबर तो वो 31st दिसंबर तक ही था। तो दिसंबर के 31 दिन हुए, 31 plus 17, so it will come 48 days. It's come 48
8 days। सो हम फटाफट से कंडीशन लिखेंगे और कंडीशन चेक करेंगे। तो पहली ही कंडीशन है 182 डेज और मोर, 182 डेज और मोर। तो यहाँ पे 182 डेज नहीं हो रहे हैं तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। कोई बात नहीं, अब ये दोनों साथ में चेक करेंगे। अब ये दोनों हो गए तो भी वो रेसिडेंट कहलाएगा। यहाँ पे हो गया 60 डेज और मोर, तो यहाँ पे तो हमारा 40 डेज है, तो ये भी कंसिडर नहीं हुई। तो ये सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये दोनों साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि ये दोनों साथ में कंप्लीट होनी चाहिए। तो अब तो पहली ही नहीं हुई तो दूसरी होगी तो भी वो नॉन रेसिडेंट ही कहलाएगा। ठीक है, तो रेसिडेंट का ये तीनों कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं करता है, वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, तो हम उसे नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? नॉन रेसिडेंट। सो वी डिक्लेयर्ड नॉन रेसिडेंट। अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो वो ऑर्डिनरी है, नॉट ऑर्डिनरी है, वो हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अगर वो रेसिडेंट होगा तो ही हम उसका स्टेटस चेक करेंगे, ऑर्डिनरी बट नॉट ऑर्डिनरी। बट यहाँ तो सीधा नॉन रेसिडेंट आ गया तो उसकी ऑर्डिनरी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इन द इलस्ट्रेशन नंबर 2 असेसिव फाउंड द नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ में आया? अब हम कैलकुलेट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3, Ricky Ponting is an Australian citizen. He has regularly visited India during the last 11 years, inclusive to 2019-20. Previous year के including वो 11 सालों से हर साल वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, वो इंडिया में आता है। किन महीनों में आता है? इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। वो 3 मंथ यहाँ पे इंडिया में हर साल 11 साल से हर साल वो आता है। किन महीनों में आता है? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आता है। डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। सो इलस्ट्रेशन 3, फर्स्ट हम लिखेंगे असेसमेंट ईयर 2020-21, प्रीवियस ईयर हो गया हमारा 2019-20 एंड प्रीवियस ईयर का पीरियड क्या हो गया? 1/4/2019 टू 31 मार्च 2020। फर्स्ट हम डेज कैलकुलेट करेंगे। इंक्लूसिव 2019-20 ही इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर के हो गए 31, 30, 31। टोटल डेज हो गए 92 डेज। सो पिछले 11 सालों से वो 92 डेज इंडिया में आता है। हर साल आता है, इन 3 महीनों में ही आता है। तो पहले तो हम उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे, उसके बाद ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी वो चेक करेंगे। तो पहली कंडीशन हो गई 182 डेज और मोर। सो यहाँ पे 182 डेज नहीं हो रहे हैं तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। बट उसके अलावा ये 2 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो भी वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा। सो देखते हैं 60 डेज और मोर। तो यहाँ पे 60 डेज और तो हो रहे हैं तो वो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आपको सारी की सारी कंडीशन लिखनी है और इन ब्रैकेट में यस नो, अगर सेटिस्फाई हो रही है तो यस, अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो नो, ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है। सो पहली कंडीशन है 182 डेज और मोर, वो नहीं हो रही है। सेकंड, मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिख रही हूँ, आपको पूरी कंडीशन लिखनी है तो ही मार्क्स मिलेंगे। देन 60 डेज और मोर, सो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसके साथ कंडीशन क्या है? 365 डेज इन प्रीसीडिंग 4 ईयर्स। प्रीवियस ईयर की
प्रिसीडिंग 4 ईयर में टोटल 365 डेज होने। दैट मीन्स कि वो हर साल इन्हीं 3 महीनों में आता है और हर साल के ईयर में 92 डेज ही होंगे, राइट। सो हमें कितने ईयर्स के चाहिए? 4 ईयर्स के। सो 92 इंटू 4 डेज हो गए 368। डेज कितने हो गए? 368। हमें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा 92 डेज इंटू 4 ईयर्स इज इक्वल्स टू 368 days, that is more than a 365, right? So यहाँ पे ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो 182 डेज वाली नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, ये दोनों साथ में होनी चाहिए। तो ये 60 डेज वाली और 365 डेज वाली भी साथ में हो रही है। दैट मीन्स ही इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रेसिडेंट हो गया। अभी हम चेक करना है कि ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है। तो ऑर्डिनरी के लिए पहली क्या हो गई? 2 years आउट ऑफ 10 years ही मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो 10 सालों में से 2 साल रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। दैट मीन्स ये प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट हो गया तो वो 11 सालों से सेम पैटर्न में आता है, ठीक है। तो वो 11 सालों में भी वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो होगा ही, राइट। सो वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया 10 सालों में से 2 सालों एटलीस्ट वो 10 से 10 साल प्रीसीडिंग ईयर के वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होगा। तो वो सेटिस्फाई हो गया। इसके साथ दूसरी कंडीशन है 730 डेज और मोर इन प्रीसीडिंग 7 years, यानी कि 7 सालों प्रीसीडिंग 7 सालों का टोटल 730 डेज होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं 730 डेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो 92 डेज इंटू 7, 92 इंटू 7, 644 डेज। तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, सिर्फ एक हो तो नहीं चलेगा, ये दोनों की दोनों साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो एक नहीं हो रही है, दैट मीन्स ही इज अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा बट ऑर्डिनरी नहीं होगा, वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। समझ में आया? इस हिसाब से आपको ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट स्टेटस चेक करना है। पहले तो आप चेक करोगे रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। अगर रेसिडेंट आया तो ही फर्दर के 2 कंडीशन आप लिखोगे और स्टेटस चेक करोगे कि वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5। Mr. James, a foreign citizen who stayed in India for 112 days during the previous year of the 2019-20, determine his residential status for the assessment year 2021 on the basis of the following further details stays in India। हमें पिछले 15 साल की डेज की इंफॉर्मेशन दी गई हुई है, उसके हिसाब से हमें रेसिडेंशियल और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं वो कंडीशन चेक करके हमें स्टेटस चेक करना है। तो इलस्ट्रेशन 5 हम कैलकुलेट करेंगे। पहले तो हम असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर लिखेंगे। 2020-21 प्रीवियस ईयर हो गया 2019-20, पीरियड हो गया 1/4/2019 टू 31 मार्च 2020। अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में कितने हैं। प्रीवियस ईयर में डेज दिए गए हुए हैं 112 डेज। कंडीशन चेक करते हैं 182 डेज और मोर, सो वो तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, उसके नीचे की 2 कंडीशन है वो सेटिस्फाई करते हैं, ट्राई करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है 60 डेज और मोर, वो तो हो गया, 60 डेज और मोर तो है। साथ में
365 days in a preceding 4 year. So पिछले 4 सालों का टोटल 365 होना चाहिए. पिछले 4 साल यहाँ से नहीं लिखेंगे हम, प्रीवियस ईयर के पिछले 5 साल. सो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 70, 20, 170 एंड 120. टोटल इज 380. तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन आपको दिखानी पड़ेगी. 70 प्लस 20 प्लस 170 प्लस 120 टोटल हो गया 380. दैट इज मोर देन अ 365. ये आपको सब कुछ लिख के बताना पड़ेगा, कंडीशन उसके साथ ये डेज सब कुछ कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा. मैं तो आपको सिर्फ समझा रही हूँ. 365 से तो ज़्यादा हो ही गया, यानी कि 60 डेज वाली और 365 डेज वाली इन द प्रेसिडिंग 4 ईयर, दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो वो रेसिडेंट हो गया. क्या हो गया? रेसिडेंट. अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं है उसके लिए चेक करना पड़ेगा. तो हमें क्या करना है? पहली कंडीशन है कि पिछले 10 सालों में से कोई भी 2 साल वो रेसिडेंट और नॉट रेसिडेंट होना चाहिए. तो पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि वो रेसिडेंट है या नहीं है. तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद 2018-19. 18-19 में वो 17 डेज है, तो 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है. फिर उस दूसरी कंडीशन 60 डेज वाली, तो 60 डेज वाली हो रही है क्योंकि वहां पे 70 डेज है. देन उसके 4 सालों का टोटल 365 होना चाहिए. सो 20 प्लस 170 प्लस 120 प्लस 311, सो वो तो 621 हो रहा है. तो वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया. सो रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2018-19. देन 2017-18. 17-18 में से तो सिर्फ वो 20 दिन है, तो 182 डेज भी नहीं होगा और 60 डेज भी नहीं होगा. ठीक है, तो वो क्या होगा? नॉन resident of India. In the 2017-18, he is a non-resident of India. Then third, 2016-17. 2016-17 में 170 डेज है, तो 182 डेज वाली नहीं होगी. तो कोई बात नहीं, दूसरी दो हम चेक करते हैं. 60, हाँ 60 वाली होगी. और उसके पिछले 4 साल यानी कि 2015-16 से कैलकुलेट करेंगे. 120, 311, 267 प्लस 135 टोटल हो गया 833. दैट मीन्स वो 365 डेज से ज़्यादा हो गई. तो यहाँ पे हम आएंगे रेसिडेंट ऑफ इंडिया. देन फोर्थ ईयर, दैट इज 2015-16. 2015-16 में 120 डेज हैं, तो दोनों के साथ में कंडीशन ऐसे ही सब में हम कंडीशन चेक करते जाएंगे. 182 डेज वाली वो भी नहीं हुई, तो वो बाकी की दो. तो हर बार ऐसे चेक करना पड़ेगा और हमें रेसिडेंट ऑफ इंडिया और नॉन रेसिडेंट है वो देखना पड़ेगा. तो 2015-16 में पर वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा. इन द फिफ्थ ईयर 2014-15 वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा. इन द सिक्स्थ ईयर 2013-14 वो भी 265 है, दैट मीन्स वो 267 है, तो वो भी रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा. तो पहली कंडीशन है कि पिछले 10 सालों में कोई भी 2 साल वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए. तो पिछले 5-6 सालों में ही वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया कई बार हो गया है. ठीक है, तो ये वाली फर्स्ट वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई है. सिर्फ हमें कैलकुलेट करना है 730 डेज इन द 7 ईयर्स. 7 ईयर्स में 730 डेज हो रहे हैं या नहीं, अब हमें वो चेक करना है. तो हम 70 से स्टार्ट करेंगे. 70 डेज, 20 डेज, 170 डेज, 120 डेज, 311 plus 267 plus 135. That means it's going to around 193 days. That means that is the more than a 730 days, right?
सो इन द रेसिडेंट ऑर्डिनरी स्टेटस की भी वो दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई करता है, तो उसका स्टेटस क्या होगा? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। वो रेसिडेंट होगा, उसके साथ साथ ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी होगा, क्योंकि वो दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई करता है। समझ में आया? होमवर्क में आपको करना है प्रैक्टिकल नंबर 1, प्रैक्टिकल नंबर 2, देन प्रैक्टिकल नंबर 8, देन प्रैक्टिकल नंबर 10, प्रैक्टिकल नंबर 13A और प्रैक्टिकल नंबर 12। ये सारे आपको होमवर्क में करने हैं। थैंक यू।